guys, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing very well. और थोड़ा कोविड से बच के रहिएगा, बहुत ज़्यादा फैल रहा है. So guys, I've been here for almost 2 years now, and as much as I love Australia, I do have to say that there are a couple of things that Australians do a bit differently, and which I find it a bit odd. I guess many other people have experienced the same thing. स्पेशली जो लोग बाहर से आते हैं, माइग्रेंट्स को यहाँ का कल्चर अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू गो ओवर दोज थिंग्स कि ऑस्ट्रेलिया में क्या डिफरेंट होता है, क्या हमारे कंट्री से अलग है, एंड हाउ द कल्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So starting with the sports, Australians are really crazy over sports. So जो most common sports है इनका, that is footy. And you might be wondering what is footy. मेरा भी यही क्वेश्चन था जब मैं आई थी, जब इनिशियली ऑस्ट्रेलिया. तो आई यूज्ड टू थिंक, क्योंकि इन लोगों की आदत है कि हर चीज के लिए बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैकस इज मैकडोनल्ड्स. फॉर डॉक्यूमेंट्स दे यूज डॉकोज. पावर पॉइंट्स को बोलेंगे प्रेसोज. सो दे लाइक यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स. एंड सिमिलरली फुटबॉल को दे से footy. But footy refers to two different sports in Australia depending on where you are in the country. So there are three main sports. One is Australian football, one is rugby league and rugby union. So if you're in Melbourne, तो यहाँ पे जो लोग footy बोल रहे हैं, they mean Australian football. So it's like a slang word जो ये लोग football के लिए use करते हैं. लेकिन अगर आप कहीं नॉर्थ पार्ट में हैं, फॉर एग्जाम्पल केन्स, क्वींसलैंड में, सो वहाँ पे footy is rugby. So you might get confused if you have stayed in two different cities or two different states, I would say, of the country. So depending on where you are, they use different. It refers to different sports. So I don't know where the line is, but if you're up on the north side, north part of the country, for example, Cairns, so footy is rugby, and if you're down south, for example in Melbourne, it refers to football. So next thing which I feel is really, I used to feel, I don't feel it anymore. I used to feel a bit weird about Australia is इनकी public holidays. I guess इनकी पब्लिक हॉलीडेज बहुत ही वियर्ड चीज़ों के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ डे कॉल्ड मेलबर्न कप डे, जिसमें हॉर्स रेसेस होती हैं. तो फॉर जस्ट लिटरली 5 मिनट हॉर्स रेस के लिए दे गिव अ फुल पब्लिक हॉलीडे. ऑब्वियसली इनका अपना सिग्निफिकेंस है उस चीज़ का, बट इनिशियली जब मैं आई थी तो यूज्ड टू फील कितना वियर्ड है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए यू गेट अ पब्लिक हॉलीडे. बट अभी अच्छा है बिकॉज आई ऑल्सो गेट इट. एंड उन लोगों को जिनको पब्लिक हॉलीडेज के दिन काम करना पड़ता है, उनके लिए भी कोई मतलब दे आर नॉट डिसएडवांटेज्ड अगर आपका उनको उस दिन डबल पे रेट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पे रेट इज 20 per hour on a normal day, and if you're working on a public holiday, so it becomes 40 per hour, so which is not bad at all. So the third thing is voting. Voting is mandatory in Australia, and if you don't vote, you are fined for that. हालांकि in India, voting is like a freedom. It's more like a right. However, in Australia, it's more like an obligation, and you are fined if you're not if you don't vote, and the fines are crazy expensive. Fourth thing is it's compulsory to wear helmets while you are riding a bicycle. Bicycles को यहाँ पे bikes कहते हैं. तो अगर आप cycles चला रहे हो और आप helmet नहीं पहन रहे हो तो भी it's illegal. You are like, it's compulsory to wear helmets while riding a bicycle as well. और हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि साइकिल्स को यहाँ पे बाइक्स कहते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज व्हेन यू कम टू ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे बाइक्स मीन्स साइकिल्स. नेक्स्ट इज यहाँ पे सेकेंड हैंड कार्स आर इनक्रेडिबली चीप, जो कि मैंने कहीं नहीं देखा है. हाँ, हालांकि इफ यू आर going for a new cars are very expensive, especially if you're going for a luxury car, for example Mercedes, Audi and BMW.
बट अगर आप सेकेंड हैंड कार्स लेते हैं, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो आते ही सेकेंड हैंड कार्स ही लेते हैं, सो दे आर चीप एंड आपको इजीली मिल भी जाती हैं. बस ये है कि आप अगर आप डीलर्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे एंड इफ यू बाय डायरेक्टली तो आपको वो सस्ती पड़ेगी. And it's very easily available from Facebook Marketplace and Gumtree. So in apps पे you get it for a very feasible rates. और जब बात हो रही है सेकेंड हैंड कार की, तो सेकेंड हैंड स्टफ जो घर के आइटम्स होती हैं, फर्नीचर, बेडिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें भी ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं और एट टाइम्स वो आपको फ्री मिल जाती हैं. तो यहाँ पे ये कल्चर है कि अगर जैसे आपको फॉर एग्जांपल मुझे मेरा काउच नहीं चाहिए और मुझे लगता है मुझे आई नीड टू गेट अ न्यू काउच एंड मुझे इसको डिस्पोज ऑफ करने की जगह मैं अपने घर के बाहर इसको रख दूंगी एंड आई पुट अ टैग ऑन इट कि दीज आर फ्री. सो एनीवन हु इज पासिंग बाय एंड हु नीड्स इट कैन टेक इट फॉर फ्री. सो ये चीज़ें आपको आप अगर ड्राइव कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपको लोगों के घरों के बाहर दिख जाएंगी. और अगर आप किसी ऐप से खरीदना चाहते हैं तो फेसबुक मार्केट प्लेस इज वन ऑफ द एप्स जहाँ पे फ्री चीज़ें और चीप चीज़ें, सेकेंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं. सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो चीज़ तो मुझे पर्सनली बहुत ही वियर्ड लगी थी जब मैं भी आई थी. ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द टैप. सो ऑस्ट्रेलिया में यू कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप, और कोई भी टैप हो घर पे. यहाँ पे फिल्टर की जरूरत नहीं होती, वाटर ऑलरेडी फिल्टर्ड आता है. तो इनिशियली जब हम लोग आते हैं तो हमें एक ये प्री कंसीव नोशन है कि फिल्टर्ड वाटर ही पीना है, बिकॉज इंडिया में हम सोच भी नहीं सकते कि आप विदाउट फिल्टर पी लोगे, अदरवाइज आप वॉशरूम में ही बैठे रहोगे. तो बट यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि आप टैप वाटर पी सकते हैं, बाथरूम का हो या किचन का हो, डजेंट मैटर. बट हाँ, वो अपनी अपनी सोच की बात है. जैसे मैं किचन से ही पीती हूँ, बट कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं प्रॉब्लम है और वो लोग कहते हैं कि हाँ कहीं बाथरूम में आप नहा रहे हो, आपको प्यास लगी और डायरेक्टली आप. नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे आप रात को स्ट्रीट्स पे वॉक कर सकते हो एंड दिस कंट्री इज एब्सोल्युटली सेफ. आई नो हम इंडिया में अकेले रात को स्ट्रीट्स पे वॉक करने का सोच भी नहीं सकते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. आप पूरा स्पेशली सीबीडी में तो बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज रात तक लोग घूमते रहते हैं, स्पेशली फ्राइडे नाइट और थर्सडे नाइट, सॉरी फ्राइडे नाइट एंड सैटरडे नाइट तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहती हैं स्ट्रीट्स. और रात के 1-2 बजे तक लोग बाहर रहते हैं और दे एंजॉय, दे लाइक टू पार्टी. हाँ, बट हैविंग सेड दैट हर कंट्री का अपना एक क्राइम रेट होता है, सो इंसिडेंट्स होने को एनीथिंग बैड कैन हैव यू. But वैसे generally it is like safe to walk on the street by yourself at night. Next is no littering on the streets. Yes, there's a very little rubbish and litter in Australia as compared to like a lot of other countries. यहाँ पे कचरा लोग नहीं फेंकते स्ट्रीट्स पे, हर वॉकिंग डिस्टेंस पे बिन्स हैं. तो आप ये सब ना ही करें तो इट्स बेटर बिकॉज फाइन, आई डोंट थिंक फाइन तो नहीं है, बट एटलीस्ट लाइक इट्स कल्चरली इट्स अ बिग नो नो. तो अगर आप कर भी रहे हैं, आप इधर उधर कुछ कचरा फेंक रहे हैं, तो आसपास के लोग ही आपको बोल देंगे एंड दैट विल बी एम्बैरेसिंग. सो अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस नॉट टू litter on the street. So that's it for today from me, guys. I hope you enjoyed it. Make sure to let me know down in the comment section below if you had another experience of a cultural shock in Australia when you came, because I am pretty sure I haven't covered everything that people see as a cultural shock in Australia. So yes, and if you like the video, please give it a big thumbs up and please subscribe to my channel and share with your friends as well. Take care. Love you. Bye-bye.